Hi guys, finally we are back with the new workouts, that is legs and abs workout. So I will give you the very basic and supportive legs exercises जहाँ पे आपकी legs पे ज़्यादा pressure नहीं आएगा and you can do it in a very good body posture way. So हर वीडियो के अंदर as I always tell you that major focus is your muscle stability. अगर आपके muscle में stability नहीं है so the result will take time a lot. So guys, here you can see me that the stretching band I'm using. So that I bought it from Decathlon and that is around 45 kg weight. So इसको आप अपने shoulders में anti lock करके you can take a accurate position for your legs and then you can go down. So during the down it's very relaxed, but when you pushing your body towards upside, it means towards opposite gravity, so then you have to focus on that around 50% only. So that helps you over there कि ये नीचे जाते टाइम ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता आपकी लेग्स पे, जो नॉर्मली भी नहीं लगता, बट ऊपर आते हुए आपको 50% सपोर्ट करता है विदाउट एनी मैनुअल सपोर्ट. सो जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड. एंड वन मोर थिंग इज़ कि जब भी आप स्क्वाट्स करते हैं सो यू हैव टू गो फुल डाउन एज पॉसिबल यू कैन. सो जो मैंने ये लेग्स की वर्कआउट करी थी फर्स्ट, सो दैट वॉज फुल डाउन and now I'll do without support, so that is half. So that pressure automatically gonna come on my thigh area, on my upper legs, not on my calves and all. So the repetition gonna be around 30 to 40. इसके आप 3 सेट कर सकते हैं and if you're comfortable to make 4 sets then that will be super great, because legs तो आप जितना ज़्यादा करो उतना अच्छा है आपके लिए. It's really good. So you can keep this thing in your mind when you're doing that, because most of the time what happens, Indian के legs में ज़्यादा power नहीं होती है and we avoid also to do workout. So leg is must. Please do it. Now let's go to another workout. Okay. So that is the decline abs leg raises. So guys, यहाँ पे हम लोग डिक्लाइन पे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज डिक्लाइन पे आपके लोअर फैट पे बहुत ज़्यादा हाईली प्रेशर आता है, आपकी लेग से पावर भी अच्छी रिलीज आउट होती है. एंड मेरी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा लोअर एंड साइड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा वियर्ड माई प्रोफाइल विजिबल करता है. मेरी स्टमक प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बैडली विजिबल करता है. लोअर एब्स, लोअर फैट एंड साइड्स. सो आई हैव टू मोर फोकस ऑन दैट. सो साइड्स करने से पहले आई हैव टू गेन सम स्टैमिना टू डू द एब्स वर्कआउट प्रॉपरली. सो इसीलिए मैं लोअर एब से ही करना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज अपर एब इज ऑलमोस्ट फाइन, अपर पार्ट इज ऑलमोस्ट गुड, लोअर इन साइड इज मेजर. सो यहाँ पे भी एज पॉसिबल रेपिटेशन यू कैन डू, ठीक है. एंड मे बी दैट इज 40 to 50 रेपिटेशन आई हैव डन. And guys, one more thing I have to tell you, that when you're doing gymming and all, so try to keep your own wireless the portable speakers with yourself, like Mac, iPhones के अंदर it's easily available. So ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स के भी आते हैं तो आप ले सकते हैं. इससे आपका एक फ़ायदा है कि you are listening your collection music. So whatever is the music you prefer to listen during the workout, so you can put it, so that whatever is happening surrounding to you, that really doesn't matter for you. As you can see in my all videos, I used to put my own hand frees. तो सारे मेरे हैंड फ्रीज मेरे अपने होते हैं और मैं अपना ही म्यूज़िक लगा के करना पसंद करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे कंसंट्रेशन पावर आपकी बहुत अलग बनती है. ओके, सो दिस इज़ द थर्ड वर्कआउट, second workout for the legs, and as per the schedule this is the third workout happening, because one we are doing leg, another is ab. So now this is the third one for the leg, the fourth one will be for the abs only.
सो गाइस स्क्वाट्स करने के बाद, स्क्वाट्स के 3 सेट करने के बाद फाइनली वी टर्न ऑन सेकेंड वर्कआउट ऑफ लेग। शेड्यूल के हिसाब से हमारा थर्ड वर्कआउट है, बट लेग्स के अकॉर्डिंग ये हमारा सेकेंड वर्कआउट चल रहा है। सो यहाँ पे आप लेग एक्सटेंशंस कर्ल कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज फ्रंट मसल एंड बैक मसल इज़ द ओनली पार्ट फ्रॉम द लेग एरिया जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा हाईली पावर इंक्रीज कर सकते हो, और ये चीज़ आपको फ्यूचर में सपोर्टिव रहती है आपकी फर्दर वर्कआउट्स के लिए भी। सो ये करना बहुत ज़रूरी है। एंड सी, यू कैन सी व्हेन आई एम कमिंग अप, सो आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ फोर्स, बट व्हेन आई एम रिलीजिंग द वेट देन आई प्रेफर टू डू इट वेरी स्लोली विद दी होल्ड। सो होल्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे वाइब्रेशन आपके मसल्स में ज़रूर होती है। थोड़ा सा पेन होता है आपको डेफिनेटली, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली, बट द मेजर पार्ट इज़ दैट ओनली कि नीचे जाते हुए आप जितना ज़्यादा होल्ड रखोगे उतना ज़्यादा आपके लेग पे प्रेशर आएगा। सो दैट इज़ रियली गुड। लिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, रिलीजिंग स्लोली करना बहुत बड़ी बात होती है। सो जस्ट फोकस ऑन योर मसल एंड द सेम थिंग आई विल टेल यू अगेन, जितना वेट आप उठा सकते हैं उतना ही प्लीज़ कैरी करिए, ज़्यादा वेट नहीं करना, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द ईगो थिंग्स, यहाँ पे ईगो रियली डजेंट मैटर, सबकी अपनी बॉडी पावर्स होती है, सबकी अपनी एनर्जी होती है, बट जोश में आप ज़्यादा वर्कआउट करोगे, ज़्यादा वेट कैरी ऑन करोगे, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो दैट शुड नॉट हैपन, सो प्लीज़ कीप दैट थिंग इन योर माइंड। सो नाउ दिस इज द फोर्थ वन as per the schedule, but this is the abs workout. So abs की हमारी ये second workout है। Perfect. So that is the elasticity band again from Decathlon. I bought it. I have all series, and this is around 25 kg per band. Yeah. ओके गाइस, सो लोअर फैट को कट डाउन करने के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल होता है, ठीक है। नॉर्मली आप बिना स्ट्रेचिंग बैंड से कर सकते हैं, बट द मेजर प्रॉब्लम इज कि पावर लगेगी एंड आपकी मोशंस कंट्रोल नहीं होंगे, बॉडी पोजीशंस कंट्रोल नहीं होंगे, डजंट मेक सेंस। सो ये पहनने के बाद स्ट्रेचिंग बैंड आपका काम 50% आसान कर देता है, बट आपको अपने स्टमक को कंप्रेस करना होता है। व्हेन योर लेग्स is going up towards upside opposite to gravity, during the time you have to make the semi C. So what will happen between the semi C is जब आपकी legs and जब आपकी upper body एक C shape बनाती है towards frontal side, then आपका stomach part compress होता है। During the time आपका वही जहाँ पे excessive fat होता है उस part में hit होता है, boost होता है। सो उस बूस्टिंग से क्या होता है, जितना भी आपके फैट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड जहाँ पे आपका मसल रीबिल्ड हो सकता है वहाँ पे उसमें स्ट्रेंथ एंड पावर इंक्रीज अप होती है, एंड देन आपका वो पार्ट लीन अप भी हो जाता है एंड मसल टोन भी हो जाता है वहाँ से। सो इनिशियली तो हम थोड़ा लीन करने के लिए ही कर रहे हैं, सो रेपिटेशन हम हाईली ही रखेंगे, एंड दैट इज़ रियली सो गुड। अभी तो मेरा फर्स्ट टाइम, मे बी सेकेंड टाइम आई एम डूइंग दैट वर्कआउट, सो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होगी, बस 1 महीने की बात और है। आई एम गोना डू वेरी गुड एंड डिफरेंट एक्सरसाइजेस, सो यू विल सी, दैट्स गुड। रेपिटेशन बहुत मैटर करती है, एंड इन हील एंड एक्सील ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा मेजर है। आप जितने अच्छे तरीके से ब्रीथिंग करेंगे उतने ज़्यादा ही अच्छे तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कंज्यूम रहेगी, एनर्जी लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगी। अगर आप अपनी ब्रीथ रोक कर वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी थकेगी, बिकॉज डायरेक्टली यू आर डूइंग 2 थिंग्स। आप अपनी वर्कआउट रोक के अपनी ब्रीथ को प्रेशराइज कर रहे हैं, एंड सेकेंड चीज़ आप अपनी बॉडी के मसल पार्ट के ऊपर वेट उठा के प्रेशर दे रहे हैं। सो 2 काम एक साथ नहीं करने हैं। टेक अ प्रॉपर गुड ब्रीथ, इनहील एंड एक्सील, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डू अ गुड वर्कआउट। आपकी बॉडी पे कंट्रोल बना रहेगा। तो ब्रीथिंग का सबसे पहले कंट्रोल करना, अगर कोई कोई स्टार्ट कर रहा है वर्कआउट्स करना, ब्रीथ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ब्रीथ कंट्रोलिंग, देन सेकेंड आपका लेस वेट, वट एवर इज योर बॉडी अलाउइंग यू, एंड द थर्ड पॉइंट इज योर पोजिशन।
then fourth level पे your build gonna start. इन पार्ट से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी मसल की टोनिंग भी होती है. जैसे लाइक मैं लेग्स की वर्कआउट कर रहा हूँ, सो मेरे लेग्स पार्ट में टोनिंग भी हो रही है, बिकॉज एनीवेज मैं 25-35 kg का वेट कैरी भी कर रहा हूँ स्ट्रेचिंग बैंड से. बट मेरे स्टमक कोर पार्ट पे मेरे मसल जो मेरा फैट है उस फैट को कट डाउन करने के लिए भी हेल्प आउट कर रहा है. और ये रिलीज़ थोड़ा सा आराम से करें तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत पेन होता है. और ये हमारे ट्रेनर है, ही इज़ वेरी गुड. अर्लियर ही वॉज सो bulky, but now he reduced, so he's very good with the physics, very nice physics he had. Let's go on another place. Yeah, so this will be diamond leg races. ठीक है guys, यहाँ पे आपके ड्रिल वर्कआउट्स हो जाते हैं. आप अपनी लेग्स को लेग रेस करते हो and then you try to make a triangle. गाइस इस ट्रायंगल में आपके दो फंक्शनल पे वर्कआउट होता है. ऑलमोस्ट यू कैन से 3 ऑल्सो, बट मेजरली 2 पे ही होता है. एक आपका लोअर फैट पे एंड जो आपका बैले फैट होता है बेसिकली. सी जैसे ही मेरी लेग्स ऊपर जाती है तो मेरे बैले फैट को हिट करता है, एंड व्हेन आई एम टेकिंग डाउन जस्ट बिसाइड, सो वहाँ पे मेरे साइड्स पे प्रेशर आता है. एंड जैसे ही मैं लोअर पे लाते लाते आई एम जस्ट मेकिंग द स्ट्रेट लाइन, या 1 2 दिस इज स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे आते आते ये प्रेशर मेरे बट पे आ जाता है. सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे 3 बॉडी पार्ट्स पे वर्क हो रहा है, पर जो हमारा मेजरली पार्ट है दैट इज़ आर लोअर फैट, जिसको हम बैले बोलते हैं. एंड उसके अलावा हमारे बट पे प्रेशर आ रहा है. सो इट्स रियली गुड. सॉरी सिचुएशंस थोड़ी सी वियर्ड है, बट still ignore it. I can't do anything मतलब when I'm doing abs, so this shape gonna be come anyway. I'm मतलब expressionless over here. There's no word to define anything. थोड़ा next time से I will definitely try कि मैं कैमरे का एंगल थोड़ा दूर करके ही रखूँ, so that वो बिल्कुल close motions पे ना आए. थोड़ी सी डिग्रीज भी I will try to shift it. It's very good. And guys, this is the last video of this week. So इसके बाद आप मेरे सिंगल वर्कआउट देखेंगे. अभी तक मैं डबल वर्कआउट कर रहा था. So after this video I will gonna start post single workout video with abs and cardio and all. So I will start focusing on that because muscle stability power is almost there, मतलब it's almost in my hand, so it's good. So this one is okay. So the sumo squats, okay, perfectly. Guys, you can see मतलब this is specifically work for your thigh and your butt, so this is really so good. But the major part is you can see my knee. So my knees is very stable, and when I'm going up then I'm taking inside, and when I'm taking the position against sumo, so you can see my feet and my calves area, this is a straight, this is a parallel line is visible. So ये लाइन आपका जो नी पार्ट है ये कभी भी जूते की तरफ को आपका वापस नहीं आना चाहिए, मतलब आपके शूज़ की तरफ को दोबारा शिफ्ट अप नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी वेरी स्ट्रेट एंड मेजर फोकस ऑन योर थाई एंड ऑन योर बट. लोअर बैक पे इंजरी होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए आई एम यूजिंग द स्ट्रेचिंग बैंड. और अगर आप लोगों को भी प्रेशर आ सकता है सो जस्ट डू इट हाफ करने में कभी प्रॉब्लम नहीं है. बट द पॉइंट इज गुड पोस्चर, a perfect weight, a perfect workout, that should be happen. चाहे आप 40% ही करो, that really doesn't matter. But आज आप 40% करोगे, 20% करोगे, then later on you can increase the power. You can feel it that your body is more consumable. So आपकी बॉडी और ज़्यादा कंज्यूम कर सकती है रेपिटेशंस को, वेट को. So just keep that thing in your mind. Okay, what I'm gonna do over here? Okay, fine, perfect. Guys, वो बहुत मुश्किल से I've put up the weight
फॉर माई लेग्स, और उसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी पे आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा. So this workout I am doing specifically for my butt only. It's already big but I need a good shape. So this is the back kicking I am doing. So back kicking में क्या होता है कि आपके बट में अगर कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं है, so the volume gonna come very nicely. So मुझे और वॉल्यूम चाहिए because when I'm going to cut it down, then मेरा वॉल्यूम reduce हो जाएगा. So still I'm working for my volume also. You can see the semi-seat. Okay. सो दिस इज़ द क्रॉस लेग पुशिंग. सो यहाँ पे आप अपनी लेफ्ट साइड की लेग्स को अपने राइट हैंड साइड में किक बैक करते हैं. इससे आपके बट्स के अंदर एक एक्चुअल में जो राउंड शेप होती है वो जनरेट होती है. एंड दैट इज़ रियली सो वर्थ इट. इट्स रियली वर्थ इट. बट इतना भी ज़्यादा किक बैक मत करना कि आपके प्रेशर लोअर बैक पे आए डायरेक्टली. दैट शुड नॉट हैपन. सो उतना करिए जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है. जैसे मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ, एवरीबडी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ. सबकी व्हील पावर्स अलग होती है. सो आपकी जो व्हील पावर है आप उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करिए. डोंट फॉलो एनीवन, डोंट लिसन एनीवन. ठीक है, यू जस्ट हैव टू डू एवरीथिंग एज पर योर कंफर्ट जोन. सो आप अपने कंफर्ट जोन पे ही रह के अपनी बॉडी को पुश करिए. अगर आप 10 की रेपिटेशंस कर सकते हैं देन ट्राई टू मेक इट 15. अगर 20 कर सकते हैं देन ट्राई टू मेक इट 25 to 28. पुशिंग बहुत ज़रूरी होती है, बट पुशिंग इन अ लॉजिकली एंड इन अ राइट वे. दैट शुड हैपन. अगर आप अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो बट योर बॉडी पोस्चर इज नॉट गुड, देन देयर इज नो सेंस. आपका प्रेशर ही कहीं और जाएगा, मसल इंजर होने के चांसेस होते हैं. सो जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड. सो दिस इज द थर्ड वन आई कनेक्टेड. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, तो इसलिए आई एम नॉट कंटिन्यूइंग द वर्कआउट इन अ डिफरेंट वे. सो मैं एक ही वर्कआउट के अंदर मैंने 3 वर्कआउट को मिक्स करा है. मतलब 1 गो के अंदर आई कंबाइन 3 वर्कआउट्स. फर्स्ट मैंने करा था किक बैक, देन सेकंड मैंने करा था किक बैक क्रॉस, एंड नाउ थर्ड वन इज किक बैक एल. सो यहाँ पे आप अपनी किक लोअर अपर बॉडी को टूवर्ड्स फ्रंट साइड हल्का सा बेंड करते हैं, एंड देन यू लिफ्टिंग योर लेग्स जस्ट beside of your hand and then throwing back. सो यहाँ पे एक्चुअल में नॉर्मल आपने देखा होगा, नॉर्मली गर्ल्स में या बॉयज़ में साइड बट्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्क्वीजीनेस ही आती है, मतलब एक कर्व आता है. सो ये वाली वर्कआउट आपकी उस कर्व पार्ट को फुलफिल करती है. सो दिस इज़ द थिंग ओनली आई हैव डन टुडे ओनली. सो नाउ मेरी बैक बोन पे थोड़ा सा स्ट्रेन आ रहा है, पेन आ रहा है. सो आई विल डू सम गुड स्ट्रेचिंग जहाँ पे मेरी बॉडी पार्ट थोड़े से अच्छे से प्रॉपरली स्ट्रेच अप हो जाए, एंड देन आई गो फॉर द कार्डियो एंड ऑल. आफ्टर दैट इट्स ओवर. सो यू कैन सी. ओके, and I hope so you guys are liking my videos and all. अगर कुछ भी नहीं समझ आता है, पसंद नहीं आता, then you can comment over there. I will definitely respond for that very positively. It's really good man. मतलब after the workout everyone have to do body stretching and all, and if possibility is there then please do 20 minutes to half an hour yoga at least. That will keep your mind relaxed, keep your body so active. You can feel it. Only 25 days max. Everybody have to do workouts and all, and after 25th day you are perfect. You are on the floor now. You don't need anyone. You really don't need anyone कि आपको कोई बताए, कोई आपको कुछ कराए. You'll definitely start feeling it, and you can feel the exactly energy in your body. So it's really good man, and this gonna come I don't know how long time. तो ऐसे मेरे पास कुछ ज़्यादा है नहीं बोलने को, so I've done today, and I hope so you guys like it. You can please continue the video. There's no word to say anything. So see you soon, and wish you a very happy Diwali everyone.
Yeah, take care, see you soon. And yeah, one more thing, sorry. After Diwali I'll gonna post the very normal video. So उस video के अंदर basically I will tell you the product, what vitamins, tablets, what kind of diet, and what kind of product, basic body care product I'm using, because you can see in the video that my skin is not so good, face skin. So now I started doing workout, तो थोड़े बहुत clean हो रही है. As one of my best friend Ruwa Das कमेंट करा था मेरे को, मतलब शी कॉम्प्लीमेंटेड कह लो, कमेंट कह लो, जो भी कह लो, पर मेरे लिए तो अच्छा ही था. So that was good. Thanks to Ruwa Das, and see you soon. Just wait for the product video. उस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा guys. And once again wish you very 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 happy Diwali. Crackers मत जलाना, pollution बहुत है. I'll be sit in my home only. So be in your place and enjoy it. Have a lot of hookah. Take care.